جسے مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں بہنوں پیارے بچوں بزرگوں، آج میں آپ سب کو قومی زیارت کا مقدسہ مریم کے دامن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدا مختلف وقتوں میں انسانوں کا چناؤ کرتا ہے تاکہ وہ اس دھرتی پر رہ کر خدا کی محبت، خدا کے رحم اور خدا کے فضل کو بانٹے۔ آج ہم قومی زیارت کا مقدسہ مریم میں ریورنڈ فادر اجمل شہباز جو سینٹ میتھیو پیرش کے پہلے پیرش پریسٹ ہیں، اس کے ساتھ بردر جوزف اور بردر عرفان جیمز جو اس وقت مریم آباد کے پیرش میں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھرپور تعلیوں کے ساتھ انہیں قومی زیارت کا شامل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام مبشرین انجیل کو جو سینٹ میتھیو پیرش میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تمام ایلڈر صاحبان، تمام نوجوانوں کے گروپ، بشارت مریم کی تمام خواتین جو مقدسہ مریم کی بیٹی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پیرش میں جتنے بھی گروپ یا مومنین ہیں جو پیرش کے مختلف علاقہ جات سے آج قومی زیارت گاہ میں آئے ہیں، میں اپنی بھرپور تعلیوں میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کلیسیا مقدس یوسف جو مقدسہ مریم کا شوہر ہے اس کی عید مناتے ہیں، اور یہ بڑا خاص اور بابرکت دن ہے کہ آج آپ اسی پیرش میں موجود ہے جو دو ہستیوں کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ دنیا میں زیادہ تر پیرش جو ہے وہ ایک نام سے جانے جاتے ہیں، لیکن مریم آباد کی یہ دھرتی جو ہے بے شک قومی زیارت گاہ کے نام سے زیادہ جانی اور پہچانی جاتی ہے، لیکن یہ خدا کا خاص فضل ہے کہ پورے پاکستان میں سے دو پیرش ایسے ہیں جو دو مقدسوں کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک پیرش یہ جو جہاں پہ آپ کھڑے ہیں یہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کا پیرش ہے، یعنی یہ دونوں کا اکٹھا پیرش ہے، اور یہاں پہ دو مقدسوں کی جو خاص برکات، فضائل اور رحم تمام مومنین پر جاری و ساری رہتا ہے۔ مقدس یوسف کہ اگر زندگی پر غور کریں تو ہمیشہ خاموش تباہ ہے، خاموشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، راست بازی کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، اور ذمہ داریوں میں ثابت قدم، صبر کرنے والا اور محبت کے ساتھ اپنا آپ پیش کرنے والا ہے۔ روزوں کا یہ موسم جب بھی آپ زیارت کے لیے آتے ہیں تو آپ زائرین بن کر آتے ہیں، اور مزامیر 84 میں جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ مبارک وہ ہے جن کے دل میں زیارت کا خیال آیا۔ جو زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ مبارک بن جاتے ہیں، اور آج آپ کی کاہن اور آپ سارے کے سارے مبارک کلام مقدس کے عنصر کلام مقدس جن کے دل میں خیال زیارت کا خیال آیا، تاکہ آپ یہاں پر آ کر زیارت کر سکیں۔ زیارت کا مطلب ہے کسی کو دیکھنا، ٹو سی سمتھنگ، کسی کو دیکھنا کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا ہے۔ تو آج جب آپ زیارت میں موجود ہیں تو زیارت کے 3 خاص پہلو ہیں جن پر ہم جب بھی زائرین آتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ان تمام پہلوؤں پر ضرور غور و خوض کریں۔ پہلا پہلو پاک ماس کی قربانی میں شریک ہونا۔ جب آپ اتنی دور سے آتے ہیں تو کھلے طور پر پاک ماس میں شامل ہونا۔ دوسرا پہلو مقدسہ مریم کی پہاڑی پہ جانا، یعنی مقدسہ مریم کی زیارت کرنا۔ تیسرا اہم پہلو جو زیارت کا ہے ان 14 مقامات کی عبادت۔ بے شک آج جمعہ نہیں ہے، آپ یہی کہیں گے، لیکن ہر مقام پر کچھ سیکنڈ کے لیے رکے، فیل کریں کہ آپ کے یسوع نے آپ کے لیے کیا کام کیا ہے، کیسی بڑی
वफादारी के साथ, मोहब्बत के साथ, शादमानी के साथ आपके लिए वो कुर्बानी देता है। हम कौन सी कुर्बानी देते हैं? हमारे ख़ानदानों में, हमारी ज़िंदगी में शायद शाज़ो नाज़र बहुत सारी कुर्बानियों से हम गुरेज़ा करते हैं, लेकिन जब आप उसकी कुर्बानी पर नज़र दुराएंगे तो फिर आपको याद आएगा कि वो हमारे लिए क्या कुर्बानी देता है। और आज मुक़द्दस यूसुफ भी वही कुर्बानी, देखो मुक़द्दस मरियम को देखे, मुक़द्दस यूसुफ को देखे या खुदा यीशु मसीह को, तीनों का एक ही जुमला। वो सलीब पर कहता है, सलीब पे जाने से पहले यही कहता है, बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। मुक़द्दस मरियम कहती है, मेरी जान खुदा आपकी बड़ाई करती है, अपनी मर्जी नहीं, जो तू कहे वही होगा। और मुक़द्दस यूसुफ भी वही करता नजर आता है। तो आए आज हम भी मुक़द्दस यूसुफ की खूबियों को, मुक़द्दस यूसुफ की रास्तबाजी को, मुक़द्दस यूसुफ की कुर्बानी को और मुक़द्दस यूसुफ के सब्र को अपनाकर नेक और अच्छे मसीह बनकर हमेशा खुदा के पाकिस्तान में काम करने वाले बने। आइए बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ आज की पाकमास की अक़दस कुर्बानी में शामिल हो। चरण हाथ के लिए अपने आप को खुदा के सुपुर्द करें, अपनी तमाम दुआएं इल्तिजाएं जो बड़े ईमान के साथ आज हम कसमा मरियम की ज़ियारत में कसमा मरियम के पास लेकर आए हैं, उन तमाम इल्तिजाम को खुदा के पास रखें और अपने लिए खुदा से खास पर रहमत और फजल की इंतजार करें। मैं कादिर मुतलिक खुदा सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, दिल गफलत से बेशुमार गुनाह किए, इसलिए मुक़द्दस मरियम हमेशा हमारी सब रिश्तों और रसूल और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदा हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलिक खुदा बाप हम सब पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। आए कादिर मुतलिक और आसमानी खुदावंद, तूने इंसानी ज़ात की निजात का बाली मुक़द्दस यूसुफ के सुपुर्द किया ताकि वो वफादारी के साथ उसकी देखभाल करे। बख्श दे कि उसी की सिफारिशों की बदौलत तेरी पाक कलीसिया निजात के भेदों की खिदमत की हर वक्त पाबंद रहे। और आज ख़ास तौर पर वो अपने तमाम कलीसिया के लिए बड़ी बरकत चाहते हैं जो मेहरबान खुदावंद आज दूर दराज को सफ़र करके मुक़द्दस मरियम के दामन में आई और आज जो भी दुआएं इल्तिजाएं मुक़द्दस मरियम के दामन में की जाए, आए मेहरबान खुदावंद उन तमाम दुआओं इल्तिजाम को कबूल करके अपने बेटों और बेटियों को बड़ी बरकत अता फरमा। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से जो तेरे साथ रूह कुद्दूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। तशरीफ। खुदावंद खुदा उसे अपने बाप दाऊद का तख्त देगा। हमारे लिए आज की पहली तिलावत सैमुएल नबी की दूसरी किताब उसका 7वां बाब 4-5 नेज़ 12वें बाब की 14-16 आयात मुक़द्दसा। उस वक्त खुदावंद नातान से हम कलाम हुआ और कहा, जा और मेरे खादिम दाऊद से कह, खुदावंद यूँ फरमाता है, जब तेरे दिन तमाम हो जाएं और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाए और जब मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरी सुलभ से होगी बर्पा करूँगा और उसकी सल्तनत को मुस्तकिल करूँगा, तो वह मेरे नाम के लिए एक घर बनाएगा और मैं उसकी सल्तनत के तख्त को अब तक बरकरार रखूँगा। मैं उसका बाप होऊंगा और वो मेरा बेटा होगा। तेरा घर और तेरी सल्तनत हमेशा तक मेरे आगे कायम रहेगी और तेरा तख्त अब तक पायदार होगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मरियम के ताज से
अगरचा मालूम होता था कि इब्राहिम की उम्मीद पर ना आएगी, उसने उम्मीद रखी और वो ईमान लाया। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियो के नाम उसके चौथे बाब में से। ऐ भाइयों, वादा कि वो दुनिया का वारिस होगा इब्राहिम या उसकी नस्ल से शरीयत के लिहाज से नहीं बल्कि ईमान की सदाकत के लिहाज से किया गया। बस मिरास ईमान के लिहाज से है ताकि फजल के तौर पर वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे, ना सिर्फ उनके लिए जो शरीयत के लिहाज से बल्कि उनके लिए भी जो इब्राहिम के ईमान के लिहाज से उनकी नस्ल है। वही हम सब का बाप है। चनाचा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप मुकर्रर किया है। उस खुदा के सामने जिस पर वो ईमान लाया और जो मुर्दों को ज़िंदा करता और उन चीज़ों को जो मौजूद नहीं यूँ बुला लेता है कि मौजूद हैं। वो नाउमीदी की हालत में उम्मीद के साथ ईमान लाया ताकि उस कौल के मुआफिक कि तेरी औलाद ऐसी होगी वो बहुत सी कौमों का बाप हो, इसी वास्ते ये उसके लिए सदाकत महसूब हुआ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदा मुबारक है वो जो तेरे घर में रहते हैं, कि वो तो हमेशा तेरी सताइश करेंगे। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी। अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उससे पहले बात में से उन दिनों में यकूब से यूसुफ पैदा हुआ जो उस मरियम का शौहर था, जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। अब यीशु मसीह की पैदाइश यूँ हुई कि जब उसकी माँ मरियम यूसुफ के साथ ब्याही गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस से हामला पाई गई। तब उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे रुसवा करना नहीं चाहता था, इरादा किया कि उसे चुपके से छोड़ दे। उन बातों की सोच ही में था कि देखो खुदा के फरिश्ते ने उस पर ख्वाब में ज़ाहिर होकर कहा, ऐ यूसुफ
दाऊद के बेटे अपनी बीवी मरियम को अपने पास ले आने से मत डर। देखो जो उसके अंदर पैदा किया गया है वो रूह कुदस से है, उससे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। देखो वो अपनी उम्मत को उनके गुनाहों से बचाएगा। तब यूसुफ ने नींद से उठकर वैसा ही किया जैसा खुदा के फरिश्ते ने उससे फरमाया था। अंजलि मुक़द्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، آج کا پیغام دینے کی جنہیں سعادت حاصل ہوئی ہے وہ بردر جوزف شامو ہیں، جن کا تعلق فرانسسکن گھرانے سے ہے، اور یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے اس کلیسیا میں فرانسسکن گھرانے کا بہت بڑا کردار ہے، اور وہ یقیناً اس عزم کو اپنا ہمیشہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ماں مقدسہ مریم، ولی یوسف اور مقدس فرانسس، انہوں نے جتنی کلیسیا کی سرگرمی سے محبت میں لوگوں کو بڑھایا، اس کی کالا مثال وہ خود ہیں۔ تو آج بردر جی جب اس موضوع کو اور خاص کر آج کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو یہ برکت یہاں سے آپ نے لے کر دوسروں تک لے کے جانی ہے، تاکہ اس کلام کے وسیلہ ہمیں اور بہت سی کلیسیا میں ایسی ہستیاں روحانی ملے کہ جو ہماری مدد کریں، تاکہ جس طرح مقدسہ مریم دوسروں کو یسوع کی طرف لاتی تھی، اسی طرح ہم بھی ہمیشہ مقدسہ مریم سے فضل حاصل کریں۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج ہم عالمگیر کلیسے کے ساتھ مل کر مقدس یوسف مقدسہ مریم پاکواری کے خاوند یعنی شوہر کی عید مناتے ہیں۔ خدا ہم انسانوں سے بےحد پیار کرتا ہے، اور خدا ہمیشہ انسانوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تو انسان اور خدا کا رشتہ ٹوٹ گیا، اور خدا نے نجات کا منصوبہ بنایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ہم انسانوں کی مانند مثال بنا کر ہمارے درمیان بھیجے گا، اور یہ اس نے تکوین سے اس کی بنیاد رکھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک کنواری کے ذریعے اس دنیا میں بھیجے گا۔ اور خدا انبیاء کرام کے ذریعے سے مختلف پیشن گوئیاں کراتا رہا کہ کنواری حاملہ ہوگی، اسے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے۔ اور یوں انبیاء کرام ان پیشن گوئیوں کو انسانوں کے ساتھ بانٹتے رہے کہ نجات دہندہ اس دنیا میں کنواری کے ذریعے سے آئے گا، اور خدا اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کو چنتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو جسم دے کر اس دنیا میں ہمارے درمیان بھیجے۔ خدا نے فرشتے کو مقدسہ مریم کے پاس بھیجا تاکہ اسے خوشخبری دے، اور فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آتا ہے اور سلام پیش کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تیرے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھے گا۔ اور یہی فرشتہ حضرت یوسف کے پاس جاتا ہے، خواب میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہی پیغام حضرت یوسف کو بھی دیا جاتا ہے، جو سوچتا ہے، پریشان ہے کہ مقدسہ مریم پہلے سے حاملہ ہے۔ وہ اس کو رسوا کرنا نہیں چاہتا، ارادہ کرتا ہے کہ چپکے سے چھوڑ دے، اور اسی دوران فرشتہ حضرت یوسف کے پاس آتا ہے اور اسے ان تمام باتوں کو سمجھاتا ہے جو خدا نے اس کی زندگی میں جو کام کرنے ہیں، کہ کس طرح
खुदा उससे काम लेना चाहता है। और फरिश्ता जो है उसे कहता है कि जो कुछ उसके पेट में है वो रुदस की कुदरत से है। बेटा होगा तो उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना, और वो हर एक को निजात जो वो देगा। जब हम मुकद्दस यूसुफ की ज़िंदगी पर गौरव पास करते हैं तो हम उसकी शख्सियत को देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार, वफादार, खुदा पर ईमान, यकीन, भरोसा और तवक्कुल रखने वाला शख्स था। वो ईमानदार था, वो एक सच्चा इंसान था और खामोश तबीयत का वो मालिक था। खुदा उसे चुनता है ताकि वो इन निजात बख्श मंसूबे में अपना अहम किरदार अदा करे, ताकि वो मुकद्दसा मरियम कुंवारी का शौहर खामद हो। और उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर शौहर की जो जिम्मेदारी है उसे ऐसा तरीके से सर अंजाम दिया। जब खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के ज़रिए से दुनिया में आते हैं तो बाप होते हुए वो हर एक जिम्मेदारी निभाता है जो एक बाप अपनी औलाद के लिए निभाता है। वो सिखाता है, जो कुछ उसके पास है वो अपने बेटे को सिखाता है, उसे हुनर भी सिखाता है कि किस तरह उसने इस माशरे में ज़िंदगी बसर करनी है। वो ईमानदारी, वफादारी जो यूसुफ के पास थी वही खुदावंद यीशु मसीह को सिखाता है। और मुकद्दसा मरियम जो निजात दहिंदे की माँ है, माँ होते हुए वो उस बेटी की परवरिश करती है और परवरिश करते उसे वो तमाम काम, वो तमाम रहन सहन का तरीका जो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, मुकद्दसा मरियम भी इसी तरह अहम किरदार अदा करती है। जब आज हम यहाँ पर आए हैं ताकि हम मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत कर सकें, मुकद्दसा मरियम को सलाम कर सकें, तो ज़ियारत हम इंसानों के लिए, ईमानदारों के लिए बहुत अहम है। यहूदी हर साल यरूशलेम में आते थे ताकि वो हैकल की ज़ियारत करें, और आज खुदा ने रोज़ों की याद में हमें भी फजल ये बख्श दिया ताकि हम भी आज मरियाबाद में आकर मुकद्दसा मरियम की ज़ियारत जो करें। और जब हम ज़ियारत करते हैं तो यकीनन हम इस बात पर ईमान, यकीन, भरोसा रखते हैं कि मुकद्दसा मरियम ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की माँ है बल्कि हम सब की माँ है, और माँ होते हुए हमेशा हमारी दुआओं को सुनती है और अपने बेटे के हजूर हम सब की इल्तिजाओं को रखती है और अपने बेटे के हजूर वो हमारी सिफारिशें करती है। तो आए हम बड़े ईमान के साथ मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करें, क्योंकि जब भी हम सलाम पेश करते हैं हम उसकी अजमत को, उसकी इज्जत को, उसकी ताज़ीम को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं, क्योंकि फरिश्ते भी आकर उसे क्या करते हैं? सलाम जो पेश करते हैं। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, आप और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। है मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगार को वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे, एलिज़ाबेथ की तरह मुलाकात में लिखे जाओगे, मरियम को सलाम करने वालों किताब हयात में लिखे जाओगे। मसीह खुदा मेरे इज़्ज़त, जब भी हम मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करते हैं हम उन फरिश्तों के मालिक बन जाते हैं जो आकर मुकद्दसा मरियम को सलाम पेश करते हैं, कहते हैं सलाम ए पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू फजलों से भरी हुई है, तू पाक है
اور خدا تیرے وسیلہ سے نجات دہندہ اس دنیا میں بھیجے گا، اور یہ قول مقدسہ مریم کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ جب ہم مقدسہ مریم کی زندگی پر غور و خوض کرتے ہیں کہ وہ ہمارے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کی ماں ہوتے ہوئے کس طرح ان تمام مشکلاتوں اور پریشانیوں کا سامنا کرتی ہے کہ جب اس کا بیٹا گتسمنی میں پکڑا جاتا ہے اور اس کے بعد سپاہی اسے لے کر جاتے ہیں۔ مقدسہ مریم دکھیاری ماں، وہ ان مشکلات کا، ان دکھوں کا بڑے قریب سے تجربہ کرتی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہے کہ کس طرح اس کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں، کیا اس کے ساتھ جو سپاہی ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ سفر میں خداوند یسوع مسیح صلیب اٹھا کر جو چل رہے ہیں، سفر میں اس کے ساتھ ہے، اور وہ اس تمام اذیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ یقیناً ایک ماں ہوتے ہوئے بہت مشکل ہے ایک ماں کے لیے کہ اس کے آنکھوں کے سامنے ایک بیٹا اسے جو ہے وہ اتنی اذیت کے ساتھ کوڑے لگا کر باریک صلیب جو ہے وہ اٹھا کر کلوری کی طرف لے کر جو جا رہا ہے۔ مقدسہ مریم اور اس کا پیارا شاگرد یوحنا اور دیگر خواتین اور بھی بہت سارے لوگ وہ اس سفر میں اس کے ساتھ ہے، اور مقدسہ مریم اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے، اس کا دل جو چھلتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اس دکھ کو دیکھ نہیں سکتی، اور ایک ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اگر کسی بیٹے کو اس قدر جو دیکھے تو ایک ماں جو ہے وہ اپنے جذبات کو، اپنے احساس کو، اپنے سے دل کو جو بیان کر سکتی ہے کہ وہ کیا، کس سے وہ گزر رہی، کس تکلیف سے، کس پریشانی سے، کس مصیبت سے وہ جو گزر رہی ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کلوری تک جو پہنچتا ہے، اسے صلیب جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور جب صلیب دی جاتی ہے تو خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہے، تمام لوگ جو وہ نیچے ہیں، اور صلیب پر خداوند یسوع مسیح 7 صلیبی کلمات جو ادا کرتا ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی کے آخری وہ الفاظ ہیں جو صلیب پر ہم سب کے سامنے ادا کرتا ہے۔ 3 صلیبی کلمات کو انسانوں کے ساتھ، اور باقی جو ہے وہ 5 جو ہے وہ خدا کے ساتھ۔ خدا یسوع مسیح پہلا کلمہ جو کہتے ہیں ہجوم کی طرف وہ دیکھ کر کے اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ دوسرا کلمہ خدا یسوع مسیح کو ڈاکوں کے درمیان کہ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اور تیسرا کلمہ ماں اور شاگرد کے درمیان ہے، اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں۔ چوتھا جو ہے وہ میں پیاسا ہوں۔ پانچواں جو ہے ایلی ایلی لما سبقتانی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ چھٹا تمام ہوا، اور ساتواں ہے اے باپ میں اپنی تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ آج ہم جس کلمے پر غور و خوض کریں گے وہ تیسرا کلمہ ہے، اور جب تیسرا کلمے پر ہم غور و خوض کرتے ہیں تو یہ کلمہ محبت کا کلمہ ہے، اور یہ مقدس یوحنا کی جو اس کے 19 باب کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ اور اس کلمے سے خداوند یسوع مسیح ہم انسانوں کے ساتھ بہت گہرا رشتہ جو ہے وہ جوڑتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب 25 سے 27ویں آیت تک۔ اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی بہن الفائی کی بیوی مریم مجدلی کھڑی تھی۔ یسوع نے اپنی ماں کو اور اس شاگرد کو جسے وہ پیار کرتا تھا پاس کھڑے دیکھا، اور اپنی ماں سے کہا اے خاتون دیکھ تیرا بیٹا۔ پھر شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں، اور اسی وقت سے اس شاگرد نے اسے اپنے ہاتھ لے لیا۔
खुदावंद यीशु मसीह तीसरा कलमा अदा करते हैं सलीब पर। आप जब उस मंजर को देखें कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, मुकद्दसा मरियम उसके कदमों के सलीब के नीचे है, शागिर्द भी वहाँ पर मौजूद है, और दूसरी जो ख्वातीन जो मुकद्दसा मरियम और शागिर्द के साथ है वह वहाँ पर जो मौजूद है, और खुदावंद यीशु मसीह जान देने की हालत में सलीब पर जो लटका हुआ है। वो बहुत अहम जिम्मेदारी जो निभाता है सलीब पर। वो अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपनी माँ अपने प्यारे शागिर्द यूहन्ना को देकर जाता है, वो अपनी माँ कलीसिया को देकर जाता है, वो अपनी माँ मोमिन को देकर जाता है, क्योंकि जो शागिर्द है वो कलीसिया की नुमाइंदगी करता है, वो तमाम मोमिन की नुमाइंदगी करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ता। क्यों? क्योंकि माँ ने बहुत अहम किरदार अदा किया है निजात के कामों में, और खुदा चाहता है कि माँ के जरिए से वो निजात का मंसूबा जारी और सारी रहे। मुकद्दसा माँ मरियम खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में लेकर आती, हमें सौंपती है, और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर है, और सलीब पर से वो अपनी माँ को हमारे सुपुर्द करता है, हमारी हिफाजत में देता है, ताकि वो माँ होते हुए अपनी कलीसिया और मोमिन की क्या करे, निगहदाश्त करे, फिक्र करे, हमेशा देखभाल उनके लिए फिक्रमंद रहे, और जो दुख जो है हम सहते हैं उन्हें जो हमेशा उनके साथ जो शरीक जो है वो रहे। इसलिए ये कलमा मोहब्बत का जो कलमा है, इसे कलमे में यीशु ने अपनी माँ से गहरी मोहब्बत, अकीदत और इज्जत का इजहार करते हुए अपनी माँ को अपने लाडले और प्यारे शागिर्द यूहन्ना के सुपुर्द किया। ये कलमा यीशु के अपनी माँ के लिए जज्बात और ऐसा जिम्मेदारी का बेहतरीन नमूना है। ये कलमा अदा करके यीशु अपने बेटे होने के फर्ज को ऐसा तरीके से पूरा करता है। ये इस कलमे में यीशु अपनी माँ मरियम के लिए, मरियम के बारे में नहायत ही फिक्रमंद है, और एक गहरा रिश्ता शागिर्द और माँ के दरमियान जो है वो कायम करता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि ऐ खातून देख तेरा बेटा, और फिर शागिर्द से कहता कि देख तेरी माँ। तो यूनानी जुबान में खातून के लिए जो है वो गुने जो है वो वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ये एक खातून के लिए, एक माँ के लिए या ख्वातीन के लिए ये अल्फाज जो वो एहतरामन जो इस्तेमाल किया जाता था, और खुदावंद यीशु मसीह इस अल्फाज को जो है वो एहतरामन तौर पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 19 बाब 25 से 27 के आयत में पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह 5 दफ़ा माँ कहकर जो पुकारता है। कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा वो माँ कहकर पुकारता है। यीशु की सिर के पास उसकी माँ, यीशु ने अपनी माँ को और शागिर्द को जिसे वो प्यार करता था पास खड़े देखा 2, और अपनी माँ से कहा 3, ऐ खातून देख तेरा बेटा 4, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ 5। खुदावंद यीशु मसीह 5 दफ़ा मुकद्दसा मरियम को जो है वो माँ कहकर जो पुकारता है। और मुकद्दस यूहन्ना जब इस माँ के अल्फाज को जो सुनता है, तो वो बेटा होते हुए माँ को कबूल जो करता है, वो ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की माँ है, बल्कि वो तमाम शागिर्दों की, अब वो कलीसिया की, अब वो तमाम मोमिन की जो है वो माँ है। खुदावंद यीशु मसीह ने माँ के एहतराम को और ज़्यादा जो बुलंद कर दिया, उसने शरीयत को जो पूरा कर दिया 5 हुक्म के अंदर, तो अपने माँ बाप की इज्जत जो कर मुकद्दसा मरियम हमें जो है वो सौंपी गई है, ताकि हम उसकी इज्जत को क्या करें, ताज़ीम करें। जब हम माँ की ताज़ीम करेंगे तो हमारे बच्चे जो है वो खानदान के अंदर भी अपनी माँ की क्या करेंगे, हमेशा इज्जत जो करेंगे। ये कलमा हमें दावत देता है कि हम मुकद्दसा मरियम के साथ गहरी अकीदत रखें,
हम मुकद्दसा मरियम के पास जो आ जाए, क्योंकि वो इलाही रहम की माँ है, वो फजल की माँ है, वो निजात दहिदा की माँ है, और वो हमेशा हमारे लिए फिक्रमंद रहती है। और जब आज हम उसके हजूर आए हैं ज़ियारत के लिए, यकीनन वो हमारी दुआओं को सुनेगी। अगर हम ईमान के साथ, यकीन के साथ, एहतियात के साथ मुकद्दसा मरियम के हजूर आकर उससे सिफारिश करेंगे। क्यों? क्योंकि मुकद्दसा मरियम जब भी सिफारिश करती है, उसका बेटा कभी ना नहीं करता, बल्कि हमेशा वो हाँ जो करता है। कनाए गलील में मुकद्दसा मरियम ने यीशु को कहा, यीशु ने बोझा कर दिया मुकद्दसा मरियम के कहने से, और मुकद्दसा मरियम की सिफारिश करती है कि हमारी तमाम मनतें मुरादें जो पूरी होती हैं। आए हम बड़े ईमान के साथ मुकद्दसा मरियम को माँ कहकर पुकारें और उससे बहुत सारी बरकत और फजल पाएँ, मसीह वाले खुदा के वसीला से आमीन। और हमेशा आइए सो भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। दुआ भी करें आज जब हम मुकद्दस यूसुफ की ईद मनाते हैं कि मेहरबान खुदावंद हमें भी मुकद्दस यूसुफ जैसा ईमान और वफादारी अता करें, ताकि हम इस ज़मीन पर रहते हुए हमेशा खुदावंद पर कामिल भरोसा और खुदा के साथ वफादार रहें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज खास तौर पर दुआ करने के लिए कहा है, जिनमें हमारी बहन नाजिया, हमारा भाई अकमल और हमारी बहन रुखसाना और इसके साथ साथ और बहुत से लोग जिन्होंने खास तौर कहा कि आज उनके लिए दुआ की जाए कि मेहरबान खुदावंद उनकी ज़िंदगी के तमाम नेक मकासद को कबूल करें, और जो भी इनकी ख्वाहिशात हैं, जो भी इनकी इल्तिजाएं हैं, मुकद्दसा मरियम उन तमाम दुआओं और इल्तिजाओं को खुदा के तरफ पेश करें। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। हमारी दुआ दुआ भी करें आज तमाम मोमिनीन के लिए जो बड़ी अकीदत के साथ मुकद्दसा मरियम के ज़ियारत के लिए आए, कि मुकद्दसा मरियम जो तमाम उम्मतों की माँ और तमाम लोगों की इल्तिजाओं को खुदा के हुज़ूर पेश करती। आज आप जो भी ख़ास दुआ इल्तिजा लेकर यहाँ पर आए, खुदावंद उस तमाम दुआ इल्तिजा को कबूल करें और आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत अता फरमाए। हम इस मकसद के लिए खुदावंद से दुआ करें। आज के दिन ख़ुसूसी दुआ करते हैं मरियमाबाद की तमाम कम्युनिटी के लिए, रेवरेंड फादर तारिक जॉर्ज